Hi everyone, my name is Vinita and in this session we are going to discuss the topics of partial differential equation. So in this video as well as in the upcoming sessions, in few sessions, I am going to decode the syllabus of each and every section. Like individually मैं एक एक section लूँगी और उसके topics को मैं explain करूँगी कि मतलब इनमें से कौन कौन से सब topics आपको cover up करने हैं. Which of the topics you have to study from this particular section. This video is going to be in both the languages, English as well as in Hindi language, so that it can benefit and it can reach to the majority of the learners. So here I am going to talk about partial differential equation in this particular section. You know very well that this topic is part of your paper 2 syllabus of mathematics optional. In paper 2 it is asked in section B. In section B, it has a very good weightage in the fifth question, which is the compulsory one. So basically, this is such a section you cannot leave, and this is the easier one. So if you have the right resources, if you have the right book list, if you have the right guidance, so you will be able to score very well, like full marks in this particular section. There is no question जो कि आप छोड़ पाओगे अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है तो. So first of all, you will understand the definition of a partial differential equation. What is the difference between an ordinary differential equation and the partial differential equation? Here also let me clarify one thing. If possible, then do study ODE before studying PDE. If it is possible for you or feasible for you, do study the ordinary differential equation before you are going to study partial differential equation. If you are not able to study the entire syllabus of ODE, what you can do is you only study first order, first degree differential equations, first order and first degree ordinary differential equation. That would also work because first order and first degree ordinary differential equation has uses in partial differential equation. So if it is possible for you, then do study this topic very well, thoroughly before going for PDE syllabus. That would benefit you a lot. So first of all, understand the definition, what is partial differential equations and what are the different types of partial differential equations. For instance, there is linear, there is semi-linear, there is quasi-linear, there is non-linear partial differential equation. Then there are quasi-linear formation of partial differential equation. Then there is formation of partial differential equation. Here I should write definition and types. Understand. Right. Then there is formation of partial differential equations. For instance, you are given a particular curve and you are asked to find a partial differential equation that is going to represent that curve. This is not a hard topic. There is well defined rules for the same. There are well defined procedure for the same. So totally procedure based topic होता है formation of a partial differential equation for a given system of curves. For the given system of curves. This is on and off topic. Like UPSC, in some years UPSC has asked questions based on this topic, and in some years UPSC has not asked questions based on this topic. So it remains on and off. कभी आता है कभी नहीं आता है, right? But you have to study. Third आपके पास आता है Lagrange's method. Lagrange's method to solve quasi-linear partial differential equation. Quasi-linear partial differential equations. So once you have understood the difference between different types of partial differential equation, you will be able to identify what is quasi-linear partial differential equation. Quasi-linear का question की बात करें तो this particular topic is asked every single year. Every year questions are asked from this topic. राइट. सो इफ़ यू आर ए काइंड ऑफ पर्सन जो टॉपिक देख के सिर्फ उस टॉपिक को स्टडी करते हो, तो वट यू कैन डू इज यू कैन स्टडी Lagrange's मेथड टू सॉल्व द क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. Then there is topic based on fourth topic, formation
of an integral surface, of an integral surface, integral surface. सो बेसिकली जब आप सोल्यूशन फाइंड करोगे ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन हैज़ टू कांस्टेंट्स because you only have to study the partial differential equation involving two independent variables. सो अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो उसका जो सोल्यूशन आएगा उसमें मेरे पास दो कांस्टेंट्स होंगे. तो लास्ट में जब आप सोल्यूशन फॉर्म करोगे तो उसके बाद उन दो कांस्टेंट्स के बीच एक रिलेशन आएगा, provided the examiner has given you a curve through which the basically PD passes या फिर through which the solution passes. मेरा कहने का मतलब है this fourth topic is not a new topic, this is actually part of each and every topic. Like for instance अगर आप quasi linear partial differential equation का solution find करते हो then they may ask you to form an integral surface provided this curve passes through a certain equation. वो इक्वेशन आपको गिवन रहेगी, उसको पुट करके आपको कॉन्स्टेंट्स के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना रहता है. एंड दिस ऑल्सो इज़ एन ऑन एंड ऑफ टॉपिक, कभी आता है कभी नहीं आता है, राइट, बट यू हैव टू स्टडी इट. ऑन एंड ऑफ टॉपिक है, राइट. फिफ्थ टॉपिक इज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. नॉन लीनियर partial differential equations. There is a method called Charpit's method for such type of equations. Charpit's method. Charpit's method. I won't say that Charpit method is asked every year. On and off रहता है. Not necessarily everywhere, but it is an important one. Because whenever the question is asked, it is of 15 marks or 10 marks or 15 marks or 20 marks also. Right, so Charpit's method for non-linear partial differential equation. There is a well-defined algorithm for the same. बट पीडी में आपको पता है क्या एक चीज़ क्या हेल्प करेगी पीडी में ना, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू एडजस्ट द इक्वेशंस. सो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर मोर प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस ऑफ मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ओडी में तो क्या रहता है ना, ओडी इज़ टोटली रूल बेस्ड. आपको रूल पता है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर रूल पता है, उसी रूल से क्वेश्चन होता चला जाएगा एंड आपका आंसर आ जाएगा. बट इन पीडी यू हैव टू एडजस्ट इक्वेशंस, लाइक कुछ इक्वालिटीज़ को एडजस्ट करना, जैसे मल्टीप्लायर्स का यूज़ करके, तो वो आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा. ऑल आई एम सेइंग इज पीडी इज़ अ वेरी इजी टॉपिक. इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी इट, गो फॉर more number of questions. You have to practice more number of questions. अदरवाइज क्या रहेगा ना कि आपको वो चीज़ होल्ड नहीं कर, आप उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाओगे, राइट. फॉर इंस्टांस लेग्रांजेस मेथड है, यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन सो दैट जब भी क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन आता है तो वो आपको ईजिली स्ट्राइक कर जाएगा, राइट. सो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चारपिट्स मेथड है, टोटली एल्गोरिथम बेस्ड है. दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट वन. सिक्स्थ आपके पास आता है, sixth basically topic is non-linear partial differential equations, higher order partial differential equations with constant coefficients, These equations are of two type. One is the homogeneous type and the second one is non-homogeneous type. Right. If I talk about the homogeneous one, then homogeneous type is that type where throughout the equation the same order derivative appears, whether it be in x or be it in y. या तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है या y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, बिकॉज पीडी में यू हैव टू वेरिएबल्स ना. सो z इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x and y. x and y are the independent variables, z is the dependent variable.
सो बेसिकली आपके जो इक्वेशन होगा उसमें दो तरह के पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स एंड डेल जेड बाई डेल वाई। सो होमोजीनियस टाइप में क्या रहता है कि जो ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव है ना, फॉर इंस्टांस अगर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर है तो डेल जेड बाई डेल वाई भी डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर होगा, या फिर आप यूँ कह लो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर, दिस इज सेकेंड ऑर्डर, दिस इज ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर. So throughout the equation, the order of the derivatives remain the same. Non-homogeneous type में order of the derivatives doesn't remain the same, right? तो नॉन होमोजीनियस में फॉर इंस्टांस एक टर्म आपके पास है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक टर्म आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकती है, राइट? इफ आई टॉक अबाउट देयर सॉल्यूशंस हैज टू कंपोनेंट्स, one is the complementary function, other one is the particular integral. There is well defined procedure in order to find the complementary function. rules है, procedure है पूरा. complementary function क्या होगा, मतलब जो auxiliary equation है उसके रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको complementary function फॉर्म करना है. पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए भी देर आर सर्टेन रूल्स which you have to follow in each and every question. If I talk about the level of the topic, this is the easy one, right? Even in fact all the topics of PD are the easy one, right? If I talk about the importance, then every single year question is asked, every single year. But let me tell you, नॉन होमोजीनियस के उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं जितने होमोजीनियस के आते हैं, ये एक चीज़ ज़रूर है, राइट? एवरी ईयर क्वेश्चन आता है होमोजीनियस का, नॉन होमोजीनियस का कभी कभी ही आया हुआ है. लाइक फॉर इंस्टांस 2008 से बात करें तो मतलब 3-4 बार ही आया हुआ है नॉन होमोजीनियस का, बट होमोजीनियस का हर बार आता है, राइट? तो होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, नॉन लीनियर, हायर ऑर्डर पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, तो इसका सोल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. एवरी ईयर इट इज आस्क्ड. उसके बाद दिस सेम टॉपिक सेवंथ, non-linear higher order partial differential equations with variable coefficients. अब इसमें तो क्या होता है, जो गिवन पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे ना उनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट रहेंगे. जैसे फॉर इंस्टांस यहाँ पर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो कांस्टेंट है ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कांस्टेंट रहेगा. बट वेरिएबल में क्या होगा, इट वुड बी ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. जो कोफिशिएंट है इट वुड बी ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. बट ये वाला जो टॉपिक है ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में, नॉट मच आस्क्ड, राइट? और अगर पूछा भी जाएगा तो आपसे बहुत ही इजी टॉपिक पूछा जाता है जिसमें आपको सिर्फ एक सिंगल सब्सटीट्यूशन करना होगा एंड योर वेरिएबल कोफिशिएंट विल बी रिड्यूस टू कांस्टेंट कोफिशिएंट. जो आपका वेरिएबल कोफिशिएंट का पीडी है ना, that will get reduced to constant coefficient PD. You only have to make one substitution. All I'm saying is this is a vast topic, but you have to study very limited. Only the first type where the variable coefficients can easily be reduced into constant coefficients, right? And the rest of the procedure will remain the same. जैसे 6 में है ना वैसा ही प्रोसीजर फिर आपका कंटिन्यू हो जाएगा इसमें. ओके, एट्थ टॉपिक जो आपके पास आता है दैट इज एट टॉपिक इज कैनोनिकल फॉर्म्स रिडक्शन, राइट? सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लाइक बिहेवियर कैसा है उसका, एलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है. तो एग्जामिनर आस्क यू टू रिड्यूस दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू कैनोनिकल फॉर्म. Canonical form is basically yet another form of partial differential equation where you change the independent variables, right? आप independent variables को change कर देते हो. आप जाए ईटा यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर यू वी भी यूज़ कर सकते हो. सो देर इज़ वेल डिफाइंड प्रोसेसर एंड एल्गोरिथम फॉर द सेम. And if I talk about its relevance, then it is asked every year. This topic is also asked every year. कोई हार्डली ऐसा मतलब 1-2 साल ऐसा गया होगा जब नहीं पूछा गया होगा, बट दिस इज आस्क्ड वेरी every year.
एंड दिस इज द इजी वन, इजी वन। या तो आपका 10 मार्क्स में आता है या आपका 15 मार्क्स में आता है, कभी कभी 20 मार्क्स में भी आया हुआ है, कभी कभी, बट अभी 10 और 15 में आता है। वो पहले, बहुत पहले 20 मार्क्स में पूछा गया था। सो कैनोनिकल फॉर्म्स रिडक्शन हो गया। नाइन्थ, आपके पास अब शुरू हो जाता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, boundary value problems itself is a very big topic, right? But you do not have to study from very beginning till the end. ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इतनी है कि हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है ये समझना है। सोल्यूशन एल्गोरिथम, राइट। वेरिएबल सेपरेबल, जो वेरिएशन वेरिएबल सेपरेबल से मतलब इसका जो सोल्यूशन प्रोसीजर है वो आपको अंडरस्टैंड करना है। एंड दैट सोल्यूशन प्रोसीजर इज यूज्ड इन द हीट इक्वेशन। सेम सोल्यूशन प्रोसीजर आपको यूज़ करना है हीट इक्वेशन में, उसके बाद लाप्लास इक्वेशन में और वेव इक्वेशन में। वेव इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन, वाइब्रेटिंग string equation, right? You will find that there are variations of, there are different types of heat equations. Heat equation is of one type only, basically there are different conditions in a heat equation. जो heat equation के questions होंगे ना, there will be different conditions in that question. जैसे for instance कि if the end points are kept at constant temperature, या फिर end points are kept at 0 degree temperature, और या फिर आपको जैसे स्टेडी स्टेट में क्या कंडीशन होती है, यू नो वेरी वेल, स्टेडी स्टेट में जो टेम्परेचर होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। सिमिलरली फॉर इंस्टांस इफ वन एंड इज इंसुलेटेड, तो उस केस में डेल यू बाई डेल एक्स आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा इफ दिस एंड इज इंसुलेटेड। मेरा कहने का मतलब है यू ओनली हैव टू स्टडी हीट इक्वेशन इन वन डायमेंशन. Do not go for or do not waste your time on 2-dimensional or 3-dimensional. Only have to study heat equation in one dimension, right? Understand the different types, understand their solution procedure. As you know very well, अगर आपने सुना हुआ होगा तो ये तीनों के algorithms और तीनों के जो questions है ना, वो सिमिलर प्रोसीजर से सॉल्व होते हैं। बस उसमें डिफरेंस कहाँ रहता है, ये जो कंडीशंस है ना ये डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे किसी किसी में मान लो ये वाला एंड आपका इंसुलेट कर दिया, x इज इक्वल टू 0, ये एंड आपके पास है x इज इक्वल टू l, राइट। तो ये किसी किसी में ये वाला एंड आपका इंसुलेट कर दिया, तो बेसिकली जो लास्ट में कंडीशन होगी ना वो चेंज हो जाएगी, जो कंडीशंस है वही चेंज होंगी, सिर्फ इंटीग्रेशन का डिफरेंस रहेगा, बाकी सारा जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। सो हीट इक्वेशन वन डायमेंशन, वेव वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन जो बेसिक टाइप होता है, लाप्लास इक्वेशन जो सबसे बेसिक टाइप होता है, दैट इज डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। इसको सिर्फ एक ही प्रोसीजर जो डिरिचलेट प्रॉब्लम्स है वो आपको करनी है। इसमें बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, और जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ना तो 20 मार्क्स का मिलेगा। इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सो मेक श्योर यू स्टडी प्रॉपरली। अब इसमें एक्चुअली जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो इसमें एक चीज़ यूज़ होती है, 4 ईयर सीरीज़, 4 ईयर सीरीज़, 4 ईयर साइन सीरीज़ एंड 4 ईयर कोसाइन सीरीज़ एंड 4 ईयर कोसाइन सीरीज़, कोसाइन सीरीज़। 4 ईयर सीरीज़ वैसे तो खुद में ही टॉपिक है, बट आपको सिर्फ इन सीरीज़ का फॉर्मूला याद करना है, ओनली फॉर्मूला इज़ यूज्ड। सो मेक श्योर आप इतना ही करो कि उसमें जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं ना, हीट इक्वेशन में, लाप्लास में, वेव इक्वेशन में 2 फॉर्मूले होंगे जो कि यूज़ होंगे, सिर्फ वही आपको इसमें पढ़ने हैं, बाकी नहीं पढ़ना है, राइट। तो ये तो हो गया आपका 9 टॉपिक। यहाँ पर आपका जो मेन सिलेबस है वो ख़त्म होता है। फिर कुछ टॉपिक्स है जो कि स्कैटर्ड है, जो पूछे जाते हैं। जैसे फॉर इंस्टांस आपका कोशीज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है, कोशी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, कोशी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, 1 या 2 बार ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ओनली वंस और ट्वाइस, ओनली वंस और ट्वाइस पूछा गया है, अदरवाइज नहीं पूछा गया है। सो यू मे चूज टू स्किप इट, ये आप छोड़ सकते हो।
सो दिस आर द टॉपिक्स बेसिकली इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। आप अब PYQs देखोगे तो आपको इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इन टॉपिक्स से बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट द बुक, तो बुक आपके पास आई ऑलरेडी टोल्ड यू, MD राय सिंघानिया की एक बुक आती है, MD राय सिंघानिया की येलो कलर की बुक आती है, राइट। ये आपकी ODE के लिए भी है, PDE के लिए भी है। जिन लोगों ने मेरी क्लासेस ली हैं उन्होंने भी ये परचेज़ किया है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें ना बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एंड ये बुक थोड़ी सी बल्कि है, तो इसके स्क्रीनशॉट सेंड करना काफ़ी मुश्किल होता है मेरे लिए। वैसे तो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स एंड असाइनमेंट सेंड करती रहती हूँ, बट इसके असाइनमेंट सेंड करना थोड़ा मुश्किल है। सो येलो कलर की बुक है ODE प्लस PDE के लिए, एक तो। और दूसरा एक ग्रीन कलर की बुक आती है, एडवांस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, एडवांस्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये आपके ग्रीन कलर की बुक आती है, ग्रीन कलर, राइट। सेम ऑथर सेम है दोनों का, बाय MD राय सिंघानिया ओनली। ऑथर सेम है दोनों का, MD राय सिंघानिया की ही ये भी बुक आती है। इफ़ यू आर गोइंग टू ज्वाइन द क्लासेस, मेरी क्लासेस आप ज्वाइन करते हो तो आपको बुक्स वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे टॉपिक्स थोरली हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। Even the 10th topic as well, 10, 9, 8, 7, all these topics with multiple type of problems and multiple type of practice questions, all these are covered in my classes, right? So all those people who are going to appear in 2023, very soon I'm going to start a batch, and very soon I'm going to start foundation course for the same here only on my YouTube channel. Do let me know if you people are interested so that I can continue that series. Thanks a lot. Keep watching. In the upcoming session, I'll be decoding the syllabus just like this for different sections. Hopefully it was helpful. Let me know in the comment section. Thanks a lot. Thank you so much.